हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाणी क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके लिए क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चंस। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग चैप्टर फर्स्ट को आज चालू करते हैं। इंग्लिश मीडियम के चैप्टर 1 को चालू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है फ्रेंड्स रेशनल नंबर। व्हाट डू यू नो अबाउट द रेशनल नंबर फ्रेंड्स? यस, गिव द डिफिनेशंस ऑफ डेट। हाउ कैन वी गेट डिफिनेशन फ्रॉम? अब हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि रेशनल नंबर होता क्या है। The rational number is called that which can be written in the form of P upon Q are called the rational number. Right friends? A rational number is called that which can be written in the form of P upon Q are called the rational number. Just we can take the examples 6 upon 9, 8 upon 4, 2 upon 5, 3 upon 4. These numbers are the rational numbers and hence the Q not equal to 0. It means that denominators should not be in the zero forms. Right friends? Denominators should not be in the form of 0. Next we see the natural number. What do you know about the natural number friends? The number which start from 1 and goes to infinite are called the natural numbers. Just we can take the example of 1 2 3 4 5 dash 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 infinite. These are called the natural number. Thereafter we see the whole number. The number which start from 0 and goes to infinite are called the whole number. Just we can take the 0 1 2 3 4 5 dash 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 infinite. These numbers are called the whole numbers. Right friends? The next we see the integers. What do you know about integers? We can say that friends, combination of all negative numbers and all positive numbers including 0 are called the integers. Yes friends, we can say that combining of all negative terms and all positive terms including 0 are called the integers. Right friends? Thereafter we see the rational number. The rational numbers is called that which can be written in the form of P upon Q, and Q should not be 0. Mention it friends, it is very important. The rational number is called that which can be written in the form of P upon Q, and Q should not be 0. Then that will call the rational number. Right friends? And irrational number is what? The number which cannot be written in the form upon Q, P upon Q are called the irrational number. Right friends? The number which cannot be written in the form of P upon Q are called the irrational number. Thereafter the real number comes. What do you know about the real number? The combination of all the rational numbers and all irrational numbers are called the real numbers. Right friends? This one was the definition of this chapter. लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अब देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो यहाँ पर हम लोग बोर्डमास के थ्योरम को अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि बोर्डमास में हम लोग को ये ध्यान देना रहता है कि बी से ब्रैकेट हो जाएगा तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ये ओ से ऑफ हो जाता है तो उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, डी से डिवीजन को सॉल्व करते हैं, एम से मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं और ए से ऐड को सॉल्व करते हैं। देयर आफ्टर वी हैव टू सब्सट्रैक्ट, यानी उसके बाद हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि बोर्डमास थ्योरम में पहले तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आता है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ रहा है, तो यहाँ पर पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर ऐड करना होगा। तो देखो यहाँ पर आगे स्टेप में अप्लाई किया गया है फ्रेंड्स। अब इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों आगे ये उतार दिया गया है फ्रेंड्स, अरेंज किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 3/5 का यहाँ पर भी दिया है और 3/5 यहाँ पर भी दे रहा है हम लोग का, दोनों में कॉमन मिल रहा है, पहले वाले टर्म में भी और दूसरे वाले टर्म में भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3/5 का कॉमन निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो जब ये 3/5 को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो बच गया क्या हम लोग का -2/3 बच गया है। तो देखो यहाँ पर -2/3 हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में माइनस का साइन दिया गया, तो देखो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन दे दिया गया है। अब इसमें से भी हम लोग 3/5 को अगर हटा देते हैं तो बच गया क्या हम लोग का 1/6 बच गया। तो यहाँ पर देखो 1/6 कर दिया गया है फ्रेंड्स, और ये प्लस 5/2 को ज्यों का त्यों रख दिया गया है। अब यहाँ पर 3/5 को हम लोग ज्यों का त्यों रख दिए हैं। ये 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो 6 प्राप्त होता है फ्रेंड्स, और 3 के टेबल में जो 6 है 2 टाइम्स में जाएगा, और 2 से हम लोग जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं
हाँ फ्रेंड्स, जब 2 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 2 जो 4 तो -4 तो आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का साइन हो गया फ्रेंड्स। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में चला जाएगा। 6 के टेबल में 6 जो है ये 1 टाइम्स में जाएगा फ्रेंड्स। और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। 1 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, गलती कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मान आ गया ये 1, और ये +5/2 को ज्यों का त्यों रख दिया गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर 3/5 को हम लोग तो ज्यों का त्यों रख दिए हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर -4 में जब -1 को जोड़ते हैं तो -5 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, -4 में जब -1 को जोड़ते हैं तो -5 आएगा। देखो यहाँ पर -5 कर दिया है और नीचे 6 दिया है तो नीचे 6 हो जाएगा। कभी भी ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स कि अगर दोनों टर्म के पहले माइनस का साइन दिया गया है तो उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद दोनों के पहले अगर माइनस साइन है तो इसलिए माइनस साइन लगा देंगे फ्रेंड्स। इसलिए -5/6 यहाँ पर आ गया है, और ये 5/2 को ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर तो हम लोग 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जब 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो -1 टाइम में चला जाएगा, और 3 को इससे कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो बच गया क्या, ऊपर हम लोग का -1 बच गया और नीचे 2 बच गया फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर -1/2 कर दिया गया है। अब ये +5/2 को ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया गया है फ्रेंड्स। तो क्या माना जाएगा, नीचे अगर हम लोग का 20 बराबर होता है फ्रेंड्स तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले में -1 दे रहा था और दूसरे वाले में प्लस दे रहा था, तो -1 और +5 कर दिया गया है। अब यहाँ पर 5 में से जब 1 को घटाते हैं तो 4 बच जाएगा, तो 4 हो गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर नीचे 2 दिया गया तो 2 का 2 हो गया। 4 को घटाएंगे हम लोग 2 टाइम्स में चला जाता है। तो इस प्रकार मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो पहले वाले का इवैल्यूएशन निकल गया फ्रेंड्स, 2 माना गया। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 अब देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, कह रहा है कि 2/5 × 3/-7 -1/6 × 3/2 + 1/14 × 2/5। अब इसे भी सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स कि बोर्डमास थ्योरम में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, तो मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर पहले सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ये 2/5 को ज्यों का त्यों कर दिया गया है। और कभी भी जो हम लोग का माइनस ये जो टर्म दे रहा है ये अनअप्रोप्रिएट है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि माइनस को ऊपर करना होता है। तो इसे देखो यहाँ पर माइनस को ऊपर कर दिया गया है, तो -3/7 यहाँ पर हो गया है टर्म। और यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो पहले वाले जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो टर्म है उसको पहले रखा गया है फ्रेंड्स। तो ये 1/14 हम लोग का देखो 1/14 × 2/5 को 2/5 रख दिया गया फ्रेंड्स। और ये माइनस वाले टर्म को देखो यहाँ पर माइनस कर दिया गया है, 1/6 ये 1/6 हो गया, × 3/2 को 3/2 कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्यों किया गया फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन जो दे रहा है, देखो यहाँ पर भी हम लोग को 2/5 दे रहा है और इसमें भी 2/5 दे रहा है। इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि इन दोनों को साथ में कर दिए हैं ताकि हम लोग 2/5 का दोनों में कॉमन निकाल सकें फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जब 2/5 का कॉमन निकालते हैं पहले वाले टर्म में, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2/5 का अगर कॉमन निकालते हैं तो ये तो केवल बच गया -3/7 बच गया फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर -3/7 कर दिया गया है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पर लिख दिया गया है। अगर इसमें हम लोग 2/5 का अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये तो हट गया, बच गया क्या, 1/14 बच गया फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पर 1/14 लिख दिया गया है। और ये माइनस यहाँ पर दिया गया तो माइनस हो गया। अगर इसको कटाते हैं तो 3 के टेबल में 6 जो है 2 टाइम्स में चला जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाता है। तो यहाँ पर 1/4 आ गया है। अब यहाँ पर 2/5 को हम लोग ज्यों का त्यों रख दिए हैं फ्रेंड्स। 7 और 14 का एलसीएम जो है 14 हो जाता है। 7 के टेबल में 14 2 टाइम्स में चला जाएगा, और 2 को जब हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 हो जाता है। बीच में प्लस है तो प्लस रख दिया गया है। 14 के टेबल में 14 जो है 1 टाइम्स में जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही हो जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर माइनस जो 1/4 दे रहा था इसको ज्यों का त्यों हम लोग रख दिए हैं। यहाँ पर 2/5 को ज्यों का त्यों ऐसे रखा गया है। जब 6 में से 1, देखो यहाँ पर ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि अगर प्लस माइनस दिया रहता है तो माइनस ही होता है, मतलब घटाया जाता है हमेशा। तो जब प्लस माइनस दिया है तो हम लोग घटा रहे हैं, तो 6 में से जब 1 घटाएंगे तो हम लोग का 5 बच जाएगा, लेकिन बड़े वाले के पहले माइनस का साइन है फ्रेंड्स, इसलिए -5 हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दो फ्रेंड्स, प्लस माइनस दिया है तो हम लोग घटाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो गया, लेकिन देख रहे कि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है, ठीक है, इसलिए माइनस यहाँ पर लगा दिया गया तो -5 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर 14 दे रहा है तो ये 14 हम लोग कर दिए हैं, ठीक है, और -1/4 ये ज्यों का त्यों रख दिया गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 5 को 5 से कैंसिल कर देते हैं और 2 को
ये 14 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 से ये 14 को कैंसिल कर देते हैं तो 7 टाइम्स में चला जाएगा। 2 के टेबल में ये 14 जो है 7 टाइम्स में, तो बच गया क्या हम लोग का -1 ऊपर बच गया और नीचे हम लोग का 7 बच गया। तो देखो यहाँ पर -1 ऊपर और नीचे 7 हो गया, और यहाँ पर -1/4 यहाँ पर दे रहा तो -1/4 हो गया। अभी नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 7 4 जो 28 हो जाएगा फ्रेंड्स, 28 हो गया। 7 के टेबल में 28 4 टाइम्स में चला जाएगा। अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 हो जाता है। देखो यहाँ पर माइनस दे रहा है तो इसलिए -4 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 4 के टेबल से 28 7 टाइम्स में जाएगा, और 7 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में माइनस दिया है तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -7 हो गया फ्रेंड्स। अब जब दोनों के पहले माइनस साइन होता है तो इस संख्या जुड़ जाता है फ्रेंड्स, तो 7 और 4 11 हो जाएगा, लेकिन दोनों के पहले माइनस साइन है इसीलिए हम लोग माइनस साइन लगा दिए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो -11/28 आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मेरे पूरे जितने भी क्लास हैं यूट्यूब के क्लास, आप उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।